ہر شہر ہر خبر کے ساتھ میں ہوں انیخان، رخ کریں گے پنجاب کا۔ کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کو 76 برس بیت چکے۔ ملک بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی یوم سیاہ کے حوالے سے ریلی نکالی گئی۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر لائل پور میوزیم میں نکالے جانے والی ریلی میں عجائب گھر کا عملہ اور طلبہ کی بڑی تعداد شریک تھی۔ ریلی کی قیادت ڈائریکٹر لائل پور میوزیم عمران رضا نے کی۔ شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے اور بھارت کے خلاف فلک شگاف نعرے لگائے۔ ڈائریکٹر لائل پور میوزیم عمران رضا کا کہنا تھا کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خودارادیت دیا جائے اور کشمیریوں کو ان کا حق ملنے تک پاکستانی قوم چین سے نہیں بیٹھے گی۔ 27 اکتوبر 1947 کو انڈیا نے غیر قانونی طور پر اپنی فوج جو ہے وہ جموں کشمیر میں اتاری اور وہاں پر اس علاقے کو قبضے میں لیا، اور پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کے تمام ادارے کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اور یہ جو انہوں نے غیر قانونی عمل کیا ہے انڈیا کی آرمی نے اور انڈیا کی گورنمنٹ میں، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شہر ہے، ہم اس پر کسی اور کو قابض نہیں دیکھنا چاہتے، ٹھیک ہے۔ اتنی دیر سے جو انڈیا والوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہے وہ ناجائز قبضہ ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ انڈیا نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور ہم لوگ بچوں کو لے کے سڑکوں میں نکلے ہیں، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو انڈیا ہے وہ کشمیر کو آزاد کر دے۔ شرکاء نے مطالبہ کیا کہ بھارت کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی بند کرے اور عالمی برادری کشمیریوں سے کیا گیا استصواب رائے کا وعدہ پورا کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیخ عرفان، ABN نیوز، فیصل آباد۔ ملک بھر کی طرح ضلع چکوال میں بھی کشمیری عوام پر بھارت کی جارحیت کے خلاف یوم سیاہ منایا گیا۔ ضلع بھر میں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں بھی نکالی گئیں۔ ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے نکالی گئی، جس کی قیادت ADC ریونیو خاور بشیر نے کی۔ ریلی میں سرکاری محکموں کے افسران، سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے نعروں پر مبنی بینرز اور خطبے اٹھا رکھے تھے۔ یوم سیاہ ریلی کے شرکاء نے کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے اور بھارتی فوج کے مسلسل محاصرے کی شدید مذمت کی۔ یہ عزم دہرایا کہ کشمیر کی آزادی تک ہم کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ملک بھر کی طرح گجرات میں بھی 27 اکتوبر کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے بطور یوم سیاہ منایا گیا۔ ملک بھر میں ریلیوں، سیمینارز کا انعقاد، سرکاری افسران، سول سوسائٹی نے شرکت کی۔ یوم سیاہ کی مرکزی ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر صفدر حسین ورک نے کی۔ ڈپٹی کمشنر صفدر حسین ورک کا کہنا تھا کہ آج 27 اکتوبر کو کشمیر پر بھارتی قبضے کو 77 سال مکمل ہو چکے۔ کشمیر کے عوام کے ساتھ بھارت کی ظلم و زیادتی اور جبر کی ایک طویل داستان ہے۔ ظلم اور زیادتی سے کشمیری عوام کی بنیادی حق آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا۔ یوم استحصال کشمیر پر ملک بھر کی طرح سیالکوٹ میں بھی 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا۔ مرکزی تقریب ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ محمد ذوالقرنین کی زیر صدارت کچہری چوک میں منعقد ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر محمد ذوالقرنین کہتے ہیں بھارت نے 27 اکتوبر 1947 میں غیر قانونی طور پر جموں کشمیر میں اپنی فوج داخل کر لی، جموں کشمیر کے علاقوں پر ناجائز قابض ہو گیا اور گزشتہ 76 سالوں میں مقبوضہ جموں کشمیر میں ظلم اور جبر کا بازار گرم۔ مہذب دنیا نے بھارتی مظالم پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی۔ اقوام متحدہ کشمیر کے حق میں منظور شدہ استصواب رائے کی قرارداد پر عمل نہیں کروا سکا۔ ملک بھر کی طرح مظفر گڑھ میں بھی کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے یوم سیاہ منایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر آفس سے کلمہ چوک تک باقاعدہ طور پر ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت پارلیمانی سیکرٹری اور ممبر صوبائی اسمبلی اجمل خان نے کی۔ ریلی میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اور اسسٹنٹ کمشنر نے بھی شرکت کی۔ ریلی میں سرکاری محکموں کے افسران، ملازمین، سول سوسائٹی، انجمن تاجران کے نمائندگان نے بھی شرکت کی۔ ریلی میں کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ ٹوبہ ٹیک سے ضلع بھر میں 27 اکتوبر 1947 میں انڈیا کے مقبوضہ کشمیر میں غاصبانہ قبضے اور ظلم و ستم کے خلاف یوم سیاہ منایا گیا۔ ضلع کی تحصیلوں، قصبوں اور دیگر مقامات پر احتجاجی ریلیاں، مختلف شاہراہوں، مارکیٹس اور دیگر عوامی مقامات پر یوم سیاہ کے حوالے سے سیاہ پرچم، بینرز آویزاں۔ ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام یوم سیاہ کے موقع پر انڈین جارحیت اور مقبوضہ کشمیر میں انسانیت سوز کارروائیوں کی بھرپور مذمت۔ ضلع انتظامیہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے زیر اہتمام سیمینار اور ورکشاپ کا انعقاد۔ ضلع کونسل ہال میں واک کی گئی رکن صوبائی اسمبلی چودھری امجد علی جاوید، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سید جمیل حیدر شاہ، DSP شاہد فلک، فائنانس آفیسر ضلع کونسل روف گجر، سول ڈیفنس آفیسر، چیف ایگزیکٹو آفیسر، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی سمیت تمام سرکاری محکموں کے افسران، سول سوسائٹی، میڈیا نمائندگان اور شہریوں نے شرکت کی۔
मुल्क भर की तरह भावलपुर शहर में भी यौम स्याह कश्मीर के हवाले से रैलियों का इनेकाद, जिसका मकसद भारत का कश्मीरियों पर जुल्म सितम के खिलाफ एहतजाज और कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करना है। भावलपुर से साजिद सुहेब की रिपोर्ट देखिए। 27 अक्टूबर यौम स्याह भावलपुर में जिला इंतजामिया की जानिब से भारतीय जारहियत के खिलाफ कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए यौम स्याह पर रैली और सेमिनार का इनेकाद किया गया। कश्मीरी बहन भाइयों को इस बात का यकीन दिलाएं कि पाकिस्तानी हर लम्हा उनके साथ हैं और इंडिया की जो गासबाना कार्रवाइयाँ 77 साल से जारी हैं और उस कार्रवाइयों के बावजूद हमारे कश्मीरी बहन भाइयों की आवाज़ दबाने में नाकाम हैं। यौम स्याह कश्मीरियों के हवाले से रैलियों में तालबात ने भी भरपूर शिरकत की और कहा कि कश्मीरियों की आज़ादी की जद्दोजहद में हर कदम इनके शाना बशाना है। 27 अक्टूबर को हम लोग यौम स्याह मना रहे हैं। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि हम लोग वो जुल्म जो भारत ने कश्मीर के ऊपर किया है उसके लिए एहतजाज कर रहे हैं और पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम कश्मीर के साथ हैं। हिंदुस्तान की तरफ से कश्मीर पर जुल्म बर्बरियत के 77 बरस होने को हैं। जुल्म की चक्की में पिसे हुए कश्मीरियों की आज़ादी के लिए मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद जरूरी है। कैमरा टीम के साथ साजिद ज़ुहैब, एबीएन न्यूज़, बहावलपुर। भवाना में 27 अक्टूबर पर यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। इस हवाले से एक रैली निकाली गई। रैली असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस भवाना से शुरू हुई, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर भवाना तारिक महमूद गोंदल ने की। अफजल रमाना की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह भवाना में 27 अक्टूबर यौम स्याह कश्मीर के तौर पर मनाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस भवाना से रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर भवाना तारिक महमूद गोंदल ने की। रैली में सिविल सोसाइटी, शहरियों, रेस्क्यू 11 बाई, ट्रैफिक पुलिस, इंतजामी अफसरान की कसीर तादाद शरीक हुई। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर भवाना तारिक महमूद गोंदल का कहना था 27 अक्टूबर 1947 का दिन, जिस दिन इंडिया ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर पे कब्जा कर लिया और आज तक वहाँ पे लोगों पे जुल्म कर रहे हैं और लोगों को मुख्तलिफ किस्म की जेलों के अंदर बंद किया हुआ। लोग आए रोज़ वहाँ पे हड़तालें करते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करते हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज तक उनकी सुनी रही। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत इंडिया के इस जालमाना कब्जे के खिलाफ एहतजाज कर रही है। भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर में फौज दाखिल करके गाज़बाना कब्जा जमा लिया। आज़ादी मांगने वाले लाखों कश्मीरियों को शहीद किया गया, इनके हकूक छीन लिए। इनका कहना था हमारी सियासी सफारती हमदर्दियाँ कश्मीरी अवाम के लिए हैं। तमाम पाकिस्तानियों को दिल कश्मीरी अवाम के लिए धड़कते हैं। भवाना शहर में भी जो है वो यौम कश्मीर यानी ब्लैक डे मनाया जा रहा है। जैसा कि 27 अक्टूबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम करारदादों को पामाल करते हुए भारत ने कश्मीर में गैर कानूनी तौर पर फौजें दाखिल करके जो है उस पर गासबाना कब्जा जमा लिया। इनकी आज़ादी के लिए दुआ गो हैं। इनका कहना था अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए OIC कश्मीरियों की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए अपना किरदार अदा करे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, ABN न्यूज़, भवाना। खानपुर में भी 27 अक्टूबर का दिन कश्मीरियों से सारी यकजहती के लिए यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। म्यूनसिपल कमेटी के ज़ेर एहतमाम में म्यूनसिपल कमेटी से कैप्टन फयाज शहीद चौक तक रैली निकाली गई। आपको बताएं, मुकर्रीन का कहना था मकबूजा कश्मीर में भारतीय कब्जे और जुल्म को 70 बरस हो गए। पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरियों के लिए धड़कते हैं। पाकिस्तान के इदारे और कवाम जो है वो कश्मीरियों की हिमायत आज़ादी के लिए कोशां। कश्मीर की आज़ादी तक हम भारत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए गए। रैली में रेस्क्यू टीम, म्यूनसिपल कमेटी का अमला और रेवेन्यू अमले के अलावा शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। बोरेवाला से बताएं, जहां पे कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत और खासवाना कब्जे के खिलाफ शहरियों की जानिब से एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। भारतीय जुल्म बर्बरियत के खिलाफ और कश्मीरी भाइयों से सारी यकजहती के लिए नारेबाजी की गई। रैलियों के शुरका ने हाथों में कश्मीरी परचम उठा रखे थे, कश्मीर की आज़ादी के हक में नारे लगा रहे थे। शहरियों ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमों से मुतालबा किया कि कश्मीरियों को भारतीय तसल्लुत से आज़ाद करवा कर उनको हक़ खुद इरादियत दिलाया जाए। चीचेवतनी में कश्मीरियों से सारी यकजहती के सिलसिले में रैली का इनेकाद किया गया। रैली में सिविल सोसाइटी, रेस्क्यू, सरकारी मुलाजमीन और शहरियों ने शिरकत की। शुरका ने कश्मीरी परचम और बैनर्स उठा रखे थे, कश्मीरियों के हक में नारे लगाए। रैली बर्दिया हॉल से शुरू होकर आज़ादी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका कहते हैं 9 लाख भारतीय फौजियों ने अब तक 70 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद कर दिया। तौसा शरीफ में 27 अक्टूबर कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर की तरह तौसा शरीफ में भी यौम स्याह के हवाले से रैली का इनेकाद।
आपको बताया रैली असिस्टेंट कमिश्नर तौसा फरुख जावेद की क़यादत में म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस से शुरू होकर कलमा चौक तौसा में अख्ताम पजीर हुई। मुकर्रीन कहते हैं कश्मीरी भाइयों पर भारतीय मसालिम अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा और अक़वाम आलम को अपना किरदार अदा करते हुए कश्मीरियों को उनका हक देना होगा। पिंड दादर खान में 27 अक्टूबर भारी जारियत के खिलाफ यौम स्याह मनाया गया। यौम स्याह पर एहतजाजी मुजाहरा और रैली भी निकाली गई। आपको बताएं एहतजाजी रैली गवर्नमेंट हसनफर अली खान हाई स्कूल से निकाली गई। रैली में खवातीन की एक बड़ी तादाद शरीक। असिस्टेंट कमिश्नर की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली की शुरा तमाम रास्ते कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाते रहे। मुकर्रीन का कहना था बैन अक़वामी दुनिया 70 साल से सुगलते मसले का हल निकाले। 70 साल से जबरो इस्तबदाद का शिकार कश्मीरी हक खुद इरादियत चाहते हैं। कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कमालिया में यौम स्याह कश्मीर के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी और कश्मीरी शहरी 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर भारतीय खासवाना कब्जे के खिलाफ आज यौम स्याह मना रहे हैं। दीगर शहरों की तरह कमालिया में भी मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए यौम स्याह। शहर में असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर और चीफ ऑफिसर मोहम्मद ताहिर फारूक की जानिब से कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए बैनर्स आवेजा किए गए। इस सिलसिले में PSG कॉलेज में एक सेमिनार मुनक्किद हुआ जिसमें चीफ ऑफिसर मोहम्मद ताहिर फारूक, प्रिंसिपल राना जुल्फिकार, म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस हाफिज मसूद जिलानी और दीगर महकमाजात के अफसरान, मुलाजमीन, तलबा समेत सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। कश्मीर में भारत के खासबाना कब्जे के खिलाफ सबड़याल में भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेर निगरानी यौम स्याह मनाया गया। AC का कहना है कश्मीर में इंसानी हुकूक की सरेआम खिलाफवर्जी समेत आए रोज मजालिम बढ़ रहे हैं। मुकर्रीन का कहना था आलमी ताकतें मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर खामोश। आलम इस्लाम भारत के खिलाफ जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ सरापा एहतजाज। पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है। कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी जरूर कामयाब होगी। इस मौके पर कश्मीरी मुसलमानों के लिए दुआ भी मांगी गई। मुल्क भर की तरह आरिफ वाला में भी यौम स्याह कश्मीर के हवाले से रैली का इनेकाद। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर मीर रोमान खलील और सैयद मोहम्मद हादी जैदी ने की। राव खालिद कयूम ने रिपोर्ट तैयार की है। मुल्क भर की तरह आरिफवाला में भी भारत की जानिब से कश्मीर पर ढाए जाने वाले मुजालिम के खिलाफ कश्मीरियों से यकजहती करते हुए यौम स्याह मनाया गया। यकजहती रैली असिस्टेंट कमिश्नर मीर रोमान खलील की क़यादत में निकाली गई जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई मुकर्ररा मंजिल पर अख्ताम पजीर हुई। यकजहती रैली में महकमा जंगलात, रेन्यू, रेस्क्यू 1122, बल्दिया, पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स और महकमा तालीम आरिफवाला के मुलाजमीन शरीक हुए। कश्मीर के हक में नारेबाजी की गई। असिस्टेंट कमिश्नर मीर रोमान खलील ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज की इस रैली का और दीगर एक्टिविटीज़ का मकसद दुनिया के सामने भारत का मकरू चेहरा लेके आना है जो ख़ुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है मगर एक अरसा दराज से कश्मीरियों के हकूक़ गस्ब करके बैठा हुआ है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है जैसे कायद-ए-आज़म ने फरमाया, तो हम अपनी शहरग को किसी हिंदू के कब्ज़े में रहने नहीं देंगे और अक़वाम मुत्तहिदा की जितनी भी करारदादें हैं उनको अमल में लाते हुए उसको आज़ाद करवाएंगे। इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, हमारी पाक फ़ौज को सलाम जिन्होंने 1947 से लेकर आज की तारीख तक हिंदुस्तान के तमाम बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मुँह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। मजीद असिस्टेंट कमिश्नर मीर रोमान खलील ने कहा, कश्मीरियों से खून का कलमे का रिश्ता है। कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले जुल्म की शदीद मजम्मत करते हैं। साबिक चेयरमैन बल्दिया सैयद मोहम्मद हादी जैदी ने कहा, इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर हमारी शाहरग है। राव खालिद कयूम, ABN न्यूज़, आरिफवाला। चक्री में ग़ज़ा और फ़लस्तीन के मुतासिरीन को इमदाद के लिए दिया जाने वाला इमदादी सामान फ़लस्तीन और लबनान के सफ़ीरों के हवाले कर दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ग़ज़ा और फ़लस्तीन के मुतासिरीन की इमदाद के लिए भेजा जाने वाला इमदादी सामान फ़लस्तीन और लबनान के सफ़ीरों के हवाले किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की नुमाइंदगी मेंबर कौमी असम्बली और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी रावलपिंडी कमरुज़्ज़मान राजा, मेंबर कौमी असम्बली मलिक इब्रार भी मौजूद थे। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भेजा जाने वाला सामान फ़लस्तीन और लबनान के सफ़ीरों के हवाले किया, जिसमें कंबल, खुराक, अद्वियात, पानी और दीगर अशिया ज़रूरिया मौजूद। अपने पैगाम में मेंबर कौमी असम्बली कमरुज़्ज़मान कहते हैं, जंग के बाद इन इलाकों में अशिया ज़रूरिया की अशद कमी हो चुकी। अक़वाम आलम पर जोर दिया कि फ़लस्तीन में जारी जंग फौरी तौर पर बंद कराएं जो पूरे खत्ते को अपनी लपेट में ले सकते हैं। इस सिलसिले में तमाम मुस्लिम ममालिक को मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा और मुतासिरीन की इमदाद के लिए आगे बढ़ना चाहिए।
गुजरांवाला के इलाके गखड़ मंडी में कत्ल की वारदात। नशे के आदी भाई ने नशा करने से मना करने पर भाई और भतीजी को कत्ल कर दिया। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार। मुलजिम पंजाबी फिल्म बाली जट फिल्म का मुसन्निफ और हीरो भी रहा। एसएसपी ऑपरेशन डॉक्टर रजा तनवीर ने वाकये का फौरी नोटिस ले लिया। एसपी सिविल लाइन डिवीजन से रिपोर्ट तलब करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील देने का हुक्म दे दिया। पुलिस ने फ्रांसिक लैब के जरिए शवाहिद इकट्ठे करके लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। सरगोदा में पानी की मोटर चोरी होने का शिबा बासर मुलजमान नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। सरगोदा के नवाई गांव नवाब दाचक में जिम्मेदार ने साथियों से नौजवान को अगवा किया। मुलजमान ने अपनी अदालत लगाते हुए नौजवान को रस्सियों से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया। बासर मुलजमान 2 रोज तक नौजवान को हब से बेजा में रखकर तशद्दुद करते रहे। पुलिस तर्जमान के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो की तहकीकात जारी। मुतासर नौजवान मोहम्मद यार उर्फ यारी की तलाश जारी है। रहीम यार खान में पुलिस और डाकू के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। 2 खतरनाक डाकू हलाक, असलिया और मोटरसाइकिल बराबर। पुलिस तर्जमान के मुताबिक पुलिस को आम के बागों में डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला मिली। पुलिस रिस्पांस पर डाकुओं की पुलिस पर शदीद फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू हलाक, कलाशनकोव रिपीटर बरामद। फायरिंग रोकने के बाद पुलिस सर्च ऑपरेशन में 2 डाकुओं की लाशें बरामद। डाकू किसी बड़ी वारदात की नीयत से इलाके में मौजूद। जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी कब्जे में ले ली। पुलिस की जानिब से तमाम इलाके का सर्च ऑपरेशन करते हुए मजीद कार्रवाइयां जारी हैं। सियालकोट में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। 4 मुसल्लह डाकुओं ने कार सवारों से 76 लाख रुपए लूट लिए। तर्जमान पुलिस के मुताबिक अली और मियां शबीर ने पेरिस रोड पर वाक़ अल्फला बैंक से ये रकम निकलवाई। बैंक ने मुतासरीन को सिक्योरिटी की सहूलत हासिल करने का मशवरा दिया। सिक्योरिटी हासिल करने से उन्होंने इनकार कर दिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। सराय मोहर राज राखबा खमन मेंढर नहर कलां का पानी भल सफाई न होने की वजह से बंद हो गया। किसानों की लाख रुपए मालियत की फसलें मुतासर होने का खदशा। किसानों का महकमा अनहार के खिलाफ एहतजाज। आपको बताएं, ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद और किसानों ने महकमा अनहार के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि हमारी लाखों रुपए मालियत की फसलें मुतासर हुई। महकमा अनहार के अफसरान को मुतअद्दिद बार आगाह किया। राख राजबा घुम्मन मेंढर नहर हंजराए कलाम में पानी नहीं आता। नहर की भल सफाई नहीं की गई मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। नहर जगह जगह से टूट फूट का शिकार। महकमा अनहार के पटवारी हिस्सेदार बड़े किसानों से मेल मिलाप करके पीछे पानी लगवा देते हैं जबकि हमारी फसलें मुतासर हो रही हैं। किसानों ने वज़ीर आला पंजाब से महकमा अनहार के करप्ट अफसरान, पटवारी, जिलादार और SDO के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। फैसलाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर की मुबैना गफलत गलत खून लगने से 20 साला खातून जान की बाजी हार गई। लवाहिकीन ने लाश जिला कौंसल चौक में रखकर शदीद एहतजाज किया। देखते हैं ये रिपोर्ट। मर्जीपुरा फैसलाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से बनाए गए निजी क्लिनिक में गफलत, लापरवाही और गलत खून लगाने से चक नंबर 218 प्रोक्यांवाला की रहायशी 20 साला जुनैरा बीबी जान की बाजी हार गई। जुनैरा बीबी के लवाहिकीन ने उसकी मैयत जिला कौंसल चौक फैसलाबाद में रखकर शदीद एहतजाज किया और हुकाम बाला से निजी क्लिनिक चलाने वाली LHV साइमा के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई का मुतालबा किया। तफसील के मुताबिक जुनैरा बीबी के यहाँ 5 रोज कबल ऑपरेशन से बच्ची की पैदाइश हुई। दूसरे दिन उसकी तबीयत बिगड़ने पर मालूम हुआ कि LHV साइमा ने जुनैरा बीबी को गलत खून लगा दिया है। LHV साइमा ने जुनैरा बीबी का दोबारा इलाज करने से इनकार कर दिया और कहा कि इसे सरकारी अस्पताल में ले जाएं। इसी कश्मकश में जुनैरा बीबी की तबीयत मजीद बिगड़ गई और वो आज दम तोड़ गई। मेरी बेगम है कि मैं ब्लड लवावे गया तो उन्हें ऑपरेशन करता और ब्लड गलत लाता तो उस वजह तो डेथ हो गई है। ते सानू इंसाफ चाहिए। ऑपरेशन वड्डा कीता उस गलत करता उन्हें। ओ बेचारी ने ना दलील कीता तो फिर आखे चुक लो मुर्दा हो गया मैं नहीं रखनी इत्थे मैनू फलाण है ते तुसी बाद जाओ मैनू रुपया देवो। ओ बेचारे अगे चीज़ां वेचियां कर दियां ओ अगे गरीब हो बेचारे किराए ते बैठे नो। फैसलाबाद पुलिस ने जुनैरा बीबी के लवाहिकीन को अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाते हुए वादा किया कि LHV साइमा के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मजलूम खानदान का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और पुलिस हुक्काम से मुतालबा है कि उन्हें फौरी तौर पर इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नसीम शाह, ABN न्यूज़, फैसलाबाद। रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय फौज के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों ने आज यौम स्याह मनाया।
ज़िले इंतज़ामिया नौशहरा की जानिब से भी कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली शोबरा चौक से कचहरी चौक तक निकाली गई। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा ने की। रैली में शहरी और ताजिर बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने कश्मीरी अवाम के ख्वाहिशात के बरखिलाफ अपनी फौजें कश्मीर में उतार कर गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर लिया। जम्मू कश्मीर पर भारत के फौजी कब्जे की वजह से कश्मीरियों की मुश्किलात में कई गुना इजाफा हुआ। बालाकोट में मकबूजा कश्मीर पर भारतीय फौज के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों ने आज यौम स्याह मनाया। तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ेर एहतमाम रैली का इनेकाद। आपको बताएं, रैली के शुरा की जानिब से कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया गया। इस मौके पर शुरा ने कश्मीर जिंदाबाद इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने कश्मीरी अवाम के ख्वाहिशात के बरखिलाफ अपनी फौजें कश्मीर में उतार कर गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर लिया। जम्मू कश्मीर पर भारत के फौजी कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की मुश्किलात में कई गुना इजाफा। पाकिस्तानी अवाम भारत को वाज़ेह पैगाम देते हैं कि वो कश्मीर पर भारत के खासिबाना कब्जे को किसी सूरत कबूल नहीं करते। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीरियों के खिलाफ संगीन नौयत की कार्रवाइयों पर भारत पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। चकदरा में भी मकबूजा कश्मीर पर इंडिया के खासिबाना कब्जे और तसल्लुत के खिलाफ यौम स्याह और रैली का इनेकाद किया गया। यौम स्याह के मौके पर NCSD लोअर तीर के ज़ेर एहतमाम प्राइमरी स्कूल चकदरा से चकदरा प्रेस क्लब तक यकजहती वॉक किया गया। वॉक के शुरा ने हाथों में बैनर्स और कुतबे उठा रखे थे जिन पर भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। NCSD लोअर तीर के असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद हसन खान भी इस मौके पर मौजूद थे। शुरा वॉक से खिताब करते हुए एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर आर्टिलरी सैयद सरदार बादशाह ने कहा, भारत जालिमाना और खासिबाना तौर पर मकबूजा वादी कश्मीर में मजलूम निहत्ते कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहा है। में कश्ती मालकान की तरफ से लड़ाई झगड़े और लॉ एंड ऑर्डर के बाद खानपुर डैम को सील कर दिया गया। डैम की पिकनिक साइट को सिक्योरिटी के हवाले कर दिया गया। आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर नूर नवाज खान ने एक्सियन खानपुर डैम शोएब अब्बासी और खानपुर पुलिस के हमरा खानपुर डैम की सियाहती पिकनिक साइट को सील कर दिया। खानपुर डैम पर कश्ती रानी समेत तमाम एक्टिविटीज बंद। खानपुर डैम सैर के लिए आने वाले सियाह वापस रवाना हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर नूर नवाज खान ने कहा, गुज़िश्ता चंद रोज से खानपुर डैम पर लड़ाई मार कुटाई के कई वाकयात रोनुमा हो चुके, जिसकी वजह से खानपुर डैम समेत इलाके में लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल का खदशा था। मैंने मजिस्ट्रेट के अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए खानपुर डैम साइट को सील करके हर किस्म की एक्टिविटी को बंद कर दिया। खानपुर डैम की सिक्योरिटी के तमाम तरह इंतजाम खानपुर डैम इंतजामिया की सिक्योरिटी के हवाले कर दिए हैं। ख्वाजा खान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मरदान में 2 रोज़ा अदबी मेला अख्ताम पसीर हो गया। मेले पख्तून कौम की लोक कहानी लैला मजनू ने समा बांध दिया। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी डीन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रोफेसर अमजद अली और डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रोफेसर मुनीर खान ने किया। मेले का मकसद मेडिकल तलबा तालिबात की जहनी थकावट दूर करना और उन्हें अपनी सकाफत से मुतारिफ कराना था। कौमों की तरक्की का राज अपने कल्चर को नई नस्ल को मुंतकिल करने में है, इसलिए जदीदियत के साथ साथ अपनी सकाफत से लगाव कामयाबी है। अदबी मेले में जहां तलबा तालिबात ने भरपूर अंदाज में शिरकत की, वहीं लैला मजनू और सूफी डांस के लोक किस्से पर मेडिकल के तलबा ने बेहतरीन फन का मुजाहरा किया और मेहमानों से खूब दाद वसूल की। यहाँ रुख करेंगे सूबा सिंध का। जकबाबाद में यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर जिला इंतजामिया की जानिब से रैली निकाली गई। रैली में शरीक शुरा ने कौमी परचम उठा रखे थे। भारतीय जारियत के खिलाफ और कश्मीरी अवाम के हक में नारे बुलंद। रैली DC ऑफिस से असिस्टेंट कमिश्नर अहमद आफ्ताब और गुलाम अब्बास सदायों की क़यादत में निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरा ने मार्च करते हुए भारतीय मजालिम के खिलाफ खूब नारे लगाए। मुकर्रीन का कहना था, आज जम्मू कश्मीर को भारतीय कब्जे में 77 बरस मुकम्मल हो चुके। भारत का कश्मीरी अवाम पर जुल्म बरपरिया जारी, निहत्ते मजलूम कश्मीरी अवाम पर जारी मजालिम और भारतीय जारियत की मजम्मत करते हैं। सांगड़ में भी कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली म्यूनसिपल कमेटी से लेकर नेशनल प्रेस क्लब तक निकाली गई। आपको बताएं, मकबूजा कश्मीर पर भारत के खासिबाना और इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। रैली में जिला इंतजामिया के आला अफसरान ने शिरकत की। मुकर्रीन का कहना था, पूरी दुनिया कश्मीरियों के साथ खड़ी है और हर प्लेटफॉर्म पर कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। मुकर्रीन ने अक़वाम आलम से मुतालबा किया कि भारतीय फौज को मकबूजा कश्मीर से फौरी निकाला जाए ताकि कश्मीरी अपनी उमंगों के मुताबिक जिंदगी बसर कर सके। ठट्ठा में गुलामुल्लाह के करीब दर्स दात के करीब एक लाश प्लांट की जानिब से किए जाने वाले धमाकों से गड्ढे पड़ गए। गड्ढे में पानी दाखिल हो गया। पानी में 2 बच्चियों और 1 बच्चा डूब गए। 2 जाँ बाग हो गए और 1 को बचा लिया गया। आपको
बताएं मकामी लोगों ने बच्चों को निकाल लिया, मगर बर वक्त एम्बुलेंस का इंतजाम न होने की वजह से 2 बच्चियां मौका पर दम तोड़ गई, जबकि बच्चे को बचा लिया गया। लाशों को मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से जरूरी कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दिया गया। मकामी लोग कहते हैं क्रश प्लांट से बगैर किसी इतला के गैर कानूनी तौर पर धमाके किए जाते हैं, जिससे करीबी घरों वगैरह को भी काफी नुकसान पहुंचता है। शहजादकोट में सब्जी मंडी रोड पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार शहीद और एक SHO का प्राइवेट ड्राइवर जख्मी हो गया। मुसल्लह डाकू फायरिंग के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस की भारी नफरी तलब इलाके को घेरे में ले लिया। मुलजमान की तलाश जारी। वाकया थाना 1 सेक्शन की हुदूद गुंजानाबाद इलाके सब्जी मंडी रोड पर पेश आया। डाकू के फायरिंग से भगदड़ मच गई। शहरियों ने भागकर जान बचाई। पुलिस का कहना है डाकू के होटल के बाहर मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस एहलकार पहुंचे तो डाकू ने फायरिंग कर दी। दोनों को तशवीशनाक हालत में लड़काना अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि पुलिस एहलकार गदा हसन शाह जख्मी किताब न लाते हुए लड़काना अस्पताल में शहीद हो गए। डाकुओं के फायरिंग से शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल की नमाज जनाजा मकामी ईदगाह में अदा। नमाज जनाजा में SSP कलीम मलिक समेत पुलिस एहलकारों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वेलकम बैक। सिंध से खबरें आपको दे रहे थे। ABN न्यूज पर खबर नशर होने के बाद सखर इंतजामिया हरकत में आ गई। 100 फीट रोड पर गड़ों की मुरम्मत करके हैवी मशीनरी की मदद से काम शुरू कर दिया। निसार अहमद सिद्दीकी, टाउन चेयरमैन तारिक चौहान भी पहुंच गए और काम का जायजा लिया। मजीद बता रहे हैं सखर से पराग शर्मा अपनी इस रिपोर्ट में। हालिया बारिशों के बाद 100 फुट रोड पर गड्ढे पड़ जाने की खबर ABN न्यूज पर नशर होने के बाद सखर इंतजामिया हरकत में आ गई। गड्ढे की मरम्मत का काम शुरू कर दिया और काम का जायजा लेने निसार अहमद सिद्दीकी, टाउन चेयरमैन तारिक अहमद चौहान पहुंच गए और कहा कि ABN न्यूज पर गड्ढे की खबर नशर हुई थी, जिसके बाद रोड की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। तो कल जब आपकी तरफ से हमने देखा कि आपके चैनल में इस चीज़ को हाईलाइट किया गया, तो हमने इस पर फौरी एक्शन लेते हुए इसको हमने एक तो बनवाया भी है और इसके जो पाइपलाइन है वो भी चेंज करवा रहे हैं। ये एक्चुअल में एक पुरानी लाइनें बनी हुई डली हुई थी, तो इनकी जो डैमेजेस हैं हमें खुद अभी इससे एक्सपर्टीज़ चाहिए ताकि हम इन चीज़ों को आगे चल के फाइनलाइज करते चलें। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो लाइन डली हुई थी वो 18 इंच की डली थी, हमने इसके ऊपर अभी चेंज करके 24 इंच की लाइन डाली है। उधर शहरियों ने भी ABN न्यूज को सराहते हुए बताया कि हमेशा ABN न्यूज ने अवामी मसाइल को उजागर किया है। जब ABN पे ये खबर चली तो सखर इंतज़ामिया और निसार सिद्दीकी टाउन के चेयरमैन तारिक चौहान साहब ने फौरी एक्शन लिया और उस एक्शन का रिएक्शन आप देख रहे हैं कि वहाँ पर काम चालू है। उसकी वजह यही है कि ABN न्यूज़ ने जो खबर चलाई उस पर रिएक्शन हुआ है। तो ABN न्यूज़ का हम बहुत शुक्रगुजार हैं, ख़ास तौर पर सखर वाले, कि यहाँ पर ये काम हो रहा है तो उसी ABN न्यूज़ की वजह से हो रहा है, उसी की मेहरबानी से हो रहा है कि यहाँ पर हमें सहूलत फराहम की जा रही है। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं ABN न्यूज़ का और यहाँ इंतज़ामिया का, जिन्होंने फौरी तौर नोटिस लिया। ABN न्यूज ने आवाज बुलंद किया तो सखर इंतजामिया हरकत में आ गई। टाउन इंतजामिया का कहना है कि 3 रोज के दौरान गड्ढे का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ पराग शर्मा, ABN न्यूज सखर। कश्मीर में 3 मख्फियों की बासियाबी के लिए वर्सा ने इंडस हाईवे पर धरना दे दिया। आपको बताएं मुजाहिरीन वर्सा ने कहा मख्फी अब्दुल गफ्फार गोलो, अहमद दीन और गुलाम अब्बास गोलो की बासियाबी के लिए धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने टायर नजर आतिश करके इंडस हाईवे पर रोड को ब्लॉक कर दिया। धरने के बाद सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान की तरफ आने और जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें। मुसाफिर परेशान। मुजाहिरीन ने मजीद कहा 1 माह गुजरने के बावजूद पुलिस हमारी मख्फियों को बाजियाब नहीं करवा सकी। वजीर आला सिंध और आजी से नोटिस लेकर हमारे मख्फियों को बाजियाब कराएं। नवाब शाह में फूड अथॉरिटी की जांच से केमिकल मिले दूध की फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई। मुतअद्दिद दुकानदारों को भारी जुर्माने किए गए। फूड अथॉरिटी की जांच से शहर में केमिकल मिला दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। दूध की दुकानों पर केमिकल मिला दूध साबित होने पर 20-20 हजार रुपए जुर्माना आयद। कई मन केमिकल मिला दूध ज़ाया कर दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर फूड अथॉरिटी का कहना था आइंदा भी खराब क्वालिटी वाली अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने 3 डेयरीज़ पे छापे मारे आज, जिनमें से 2 डेयरीज़ पे केमिकल कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड की रिजल्ट्स पॉजिटिव आई। उसमें हमने 400 लीटर जो है उसको डिस्कार्ड करवा दिया, जो कि मुज़र सेहत मिल्क था। 50,000 की पेनल्टी लगाई
और उसके दुकान को सील कर दिया। जैकबाबाद में भी बिजली की बंदिश के खिलाफ मिल्स मजदूर सड़कों पर निकल आए। शुरा का शहर का मार्च जो सेपको है हुकाम मुखालिफ नारेबाजी की गई और राइस मिल्स मजदूर यूनियन की जानिब से अनाज मंडी से प्रेस क्लब तक रैली में शरीक मुजाहिरीन ने 10 नारों पर मुश्तमिल बैनर्स और यूनियन के सुर्ख झंडे उठाकर सेपको हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की। शहर के मुख्तलिफ फीडर्स पर बिजली की बदतरीन बंदिश का सिलसिला जारी। 18 ta 20 घंटे बिजली बंद रहने से तमाम मिल्स का काम ठप होकर रह गया। दिहाड़ीदार मजदूर परेशान और बेरोजगार हो गए। राइस मिल्स मालकान का कहना है माहाना करोड़ों रुपए बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली फराहम नहीं की जा रही। उन्होंने बिजली की फराहमी को यकीन बनाने समेत गैर एलानिया बंदिश के खात्मे का मुतालबा किया। बलूचिस्तान जाफराबाद में जिले इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ रैली निकाली गई। यौम स्याह कश्मीर रैली के क़यादत DC अजहर शहजाद और असिस्टेंट कमिश्नर फहद शब्बीर ने की। आपको बताएं रैली में सरकारी अफसरान, असासा और ताजरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने बैनर्स और कश्मीरी परचम उठा रखे थे। रैली के शुरका ने अदालत रोड से घंटा घर तक पैदल मार्च किया। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर पर भारत ने खासिबाना कब्जा कर रखा है। भारत निहत्ते कश्मीरियों पर मसालिम के पहाड़ तोड़ रहा है। वादी कश्मीर की सरजमीन मसलूम मुसलमानों के लिए तंग कर दी गई। जिले इंतजामिया सोबतपुर की जानिब से 27 अक्टूबर पर यौम स्याह कश्मीरी अवाम से यकजहती के लिए रैली का इनेकार। रैली में शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुकर्रीन कहते हैं भारत ने कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। 5 अगस्त 2019 को भारत ने 27 अक्टूबर 1947 की स्याह तारीख दोहराई। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक के अलमदार फौरी तौर पर कश्मीरी अवाम पर भारतीय जुल्म सितम का नोटिस लें। कश्मीरी अवाम को उनका हक दिलाएं। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर के अवाम की जद्दोजहद जरूर रंग लाएगी। गुज़िश्ता 5 सालों से यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम के जरिए भारत ने कश्मीरी अवाम का मुहासरा कर रखा है। पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों के साथ उनकी जद्दोजहद आज़ादी की हिमायत जारी रखेगा। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई मेन DC चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। बलूचिस्तान के जिला कलात में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों को पोलियो पिलाकर पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर आफ्ताब अहमद लासी, DHO डॉक्टर अली अकबर और दीगर ने भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। पोलियो के कतरों के साथ बच्चों को वाटमने के कतरे पिलाए गए। पोलियो मुहिम के हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अली अकबर निचारी ने डिप्टी कमिश्नर को 5 रोज़ा पोलियो मुहिम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। पोलियो मुहिम 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक जारी रहेगी। पूरे जिला के 19 यूनियन काउंसिल में 39,636 बच्चों को पोलियो के कतरे और वाटरमेन के कतरे पिलाए जाएंगे। लोरलई के इलाके में अख्तर के करीब मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जख्मी। अख्तर के करीब RHC के मकाम पर जमीन के तनासे पर मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक एक शख्स फायरिंग से जबकि दीगर अफराद गाड़ी की वजह से जख्मी हुए। मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर पर भारतीय फौज के कब्जे को 77 साल हो गए। जिला भिंबर में भी यौम स्याह मनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में 77 साल से जारी भारतीय जुल्म बर्बरियत के खिलाफ भिंबर में भी यौम स्याह मनाया जा रहा है। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने कश्मीर में अपने फौजी उतार कर कब्जा किया। हाथी गेट से समानी चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय अफवाज के जाबराना कब्जे के 77 साल मुकम्मल। लाइन ऑफ कंट्रोल वादी नीलम में शहरियों का एहतजाजी मुजाहिरा, भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। जिले हेडक्वार्टर 8 मकाम में जिले इंसानिया नीलम अंजुमन ताजरान के इश्तराक से बड़ी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में स्कूल के तलबा तलबात और शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका का कहना था कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं, आलमी बरादरी अपना हिस्सा डाले। रियासत भर की तरह जिला कोटली में भी 27 अक्टूबर को यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। इस सिलसिले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फैज आलम, हुर्रियत रहनुमा महमूद अख्तर कुरैशी एडवोकेट की क़यादत में एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। मुकर्रीन का कहना था 27 अक्टूबर रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख में स्याह तरीन दिनों में से, जब काबिज हिंदुस्तान ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर अपनी फौजी उतारे और रियासत पर जाबिराना कब्जा किया, आलमी कवानीन अखलाकियात और उसूलों को बलाए ताक भी रखा। तहसील बरनाला में आज यौम स्याह के मौके पर एहतजाजी रैली का इनेकाद, जिसकी क़यादत तहसीलदार बरनाला राजा आसिफ मुनीर ने की। रैली का इनेकाद तहसील कचहरी बरनाला में किया गया। रैली में हर मकदा फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। रैली में शरीक लोगों ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज के मज़ालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और बैनर्स भी उठा रखे थे। हक़ खुद इरादियत को तस्लीम करने का मुतालबा किया गया है।
यौम सियाह के मौके पर हवेली कोहूटा में एक एहतजाजी मुजाहरा और रैली डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर बाजार से होते हुए PWD रेस्ट हाउस तक गई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर हवेली राजा इमरान ने की। इसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। रैली ने कश्मीर पर भारतीय ग़ाज़बाना कब्जे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शुरका रैली ने स्याह झंडे, बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। यौम सियाह के मौके पर रावलकोट में भी डिप्टी कमिश्नर पूंछ की क़यादत में एहतजाजी रैली का इनेकाद। रैली का आगाज डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से किया गया। रैली के शुरका ने स्याह झंडे, बाजू पर स्याह पट्टियां बांध रखी थी। भारत के खिलाफ नारेबाजी की गई, जबकि कश्मीरी कभी भारतीय गासिब हुक्मरानों के सामने नहीं झुकेंगे, इस अहद का इजहार किया गया। हिंदुस्तानी अफवाज ने लाखों कश्मीरियों को शहीद किया, हजारों बेगुनाह को पाबंदे सलासल किया। वादी लीपा में शॉर्ट सर्किट के बाद आतिशबाजी 2 मकान जलकर खाकसर, बाकी एक मकान को जुज़वी नुकसान। आग की इत्तला मिलते ही मकामी आबादी, पाक फौज के जवान और तहसील जो इंतजामिया है वो मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पा लिया गया है। चिला 27 अक्टूबर यौम सियाह कश्मीर की मुनासबत से जिला दियाबर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ेरे एहतमाम रैली का इनेकाद। रैली में अवाम, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स और तलबा की बड़ी तादाद शरीक। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठाकर भारत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चिलास की फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी।